Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay. So very good afternoon to all of you. We will wait for 1 minute because there are so many students are still joining. Okay. Okay. So we will start now. As you all know that today's session is on fundamentals of web development and deployment, and it's all related to web development. Okay. So I want this session to be an interactive session because most of the students know what is web development, but they are unable to understand the fundamentals which are behind the web development and the fundamentals which are normally needed to deploy the website or web application on the internet. Okay, so this session is going to be based on these fundamentals. Okay, now let me introduce you about myself. Myself, Amit Brahmecha. I am an assistant professor in computer engineering in SNJB's College of Engineering. I have a 9+ years of teaching experience, and my area of interest is web development and mobile application development. Okay, so any query related to web development or mobile application development is always welcome. Okay, so I want this as interactive session. I already told you. Let me ask you one simple question. What do you know about a website? Okay, as we are going to discuss related to website only in this session, may I know what exactly do you know about a website? You can answer. Any student can answer. Okay, what do you know about website? Anyone would like to answer? You can turn off your mic and you can speak. Sanket Nikam has said that it's a front end and back end. I want a live answer, so you can unmute yourself and you can answer. See, I want an interactive session, so it will be good if you will speak, so that I can able to give you more. It is collection of web pages. Sorry, we can't hear you, Shruti. Please repeat. It is a collection of web pages. Okay, it's a collection of web pages. Okay, so there are basically two types of websites are there. Normally, why you are creating a website is to highlight the information which your organization is running, or if you're or to highlight the information which your business is running, right? So that's why we normally make the website, and there are basically two types of a website. First one is a static website, which is nothing but the informative website only, and the second type of website is a dynamic website where you can see the happenings which are happening dynamically. Okay, so what exactly is the difference between static website and dynamic website? So static website एक ऐसी वेबसाइट्स होती है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती. फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती मतलब डे टू डे बेसिस पे अपडेट नहीं होती. तो आपने एक बार बना के छोड़ दिया तो वो बाद में 6 महीने बाद 3 महीने बाद इस तरीके से वो बहुत टाइम ड्यूरेशन के बाद वो क्या होती है अपडेट होती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट. ओके, जैसे स्कूल की वेबसाइट है, डॉक्टर्स की वेबसाइट है, लॉयर्स की वेबसाइट है, ये नॉर्मली अपडेट नहीं होती. बहुत बार आपको आप क्या करते हो 3-3 4-4 महीने तक उसको अपडेट नहीं करते. So that is what you call as a static website. Okay, and the next type of a website is a dynamic website. So dynamic website इस तरीके की वेबसाइट होती है जो हर दिन हर घंटे अपडेट होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ले लो ये इंडियन रेलवे की कोई वेबसाइट है जहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रेन का आना जाना चलता है, ट्रेन की बुकिंग्स होती है, राइट. उसके बाद आपको कहाँ से कौन से लोकेशन से आपको कौन से लोकेशन पे जाना है, कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, इसका हर इंफॉर्मेशन आपको इंडियन रेलवे वेबसाइट में मिल जाता है. और वो हर दिन चेंज होता है, बिकॉज हर दिन क्या होता है कि अलग अलग ट्रेन अलग अलग रूट पे जाती है, अलग अलग टाइप की बुकिंग्स आप लोग कर सकते हो. तो ये डे टू डे में आप लोगों की ये वेबसाइट क्या होती है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती है. उसी तरीके से शॉपिंग वेबसाइट के बारे में आप लोग देख लो, अमेजॉन वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, पेटीएम ले लो. तो ये अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जहां पे आप लोग कुछ परचेस करते हो. ऑनलाइन क्या करते हो आप लोग, ई कॉमर्स साइट पे परचेसिंग करते हो. तो कोई ऑफर्स है या फिर कोई डिस्काउंट्स है, तो ये सभी चीजें ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रोवाइड की जाती है, और वो डायनेमिकली प्रोवाइड की जाती है. मतलब डे टू डे बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, उसको उसमें चेंजेस दिखते हो. ठीक है, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आज जैसी दिख रही है 4 महीने के बाद भी वो वैसी ही दिखेगी. ठीक है, उसके कंटेंट्स हमेशा चेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट.
So two types of a website, ये समझ में आ गया दोस्तों आपको? Everyone have understood what are the two types of a website? First one is a static website and second is a dynamic website. जो वेबसाइट फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट. जो वेबसाइट डे टू डे बेसिस पे अपडेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ कोई भी वेबसाइट आप लोग जब बनाते हो और उसको ऑनलाइन अगर आप लोगों को लाइव करना है, वेबसाइट आप लोग बना लेते हो क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर में भी आप लोग कोई भी वेबसाइट लाइव बना लेते हो. सॉरी, आप लोग सॉफ्टवेयर में भी आप क्या करते हो, कोई भी वेबसाइट बना लेते हो. लेकिन अगर उसको आपको लाइव करना है, लाइव करना है मतलब क्या, आपको इंटरनेट पे वो एक्सेस होनी चाहिए. तो आपको दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है. पहला होता है वेब होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन नेम. तो होस्टिंग और डोमेन, इसके बिना आप लोग कोई वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं sngb.org डालू, यहाँ पे अगर मैं sngb.org लिखता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. sngb.org, लेट्स से एग्जांपल पॉलिटेक्निक, ठीक है. So this is your college website, sngb.org/polytechnic. So this is your college website. अभी अगर मैं यहाँ पे sngb.org polytechnic डाल रहा हूँ तो ये वेबसाइट खुल रही है आपके कॉलेज की, बिकॉज ये लाइव है. ये जो वेबसाइट है ये लाइव है, इसके वजह से वो आपको दिख रही है. तो ये वेबसाइट आपको लाइव करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. पहला होता है होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन नेम. सो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ होस्टिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ डोमेन नेम? आपको पता है कि एग्जैक्टली होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है? So domain name aslike.com.org, etc. Okay. And what is hosting? So www World Wide Web. World Wide Web is nothing but an internet. It's not a hosting. Okay. Okay. Let me tell you what exactly is a domain name and hosting. Okay. Just a minute. So see this. मैं इसको समझाने के लिए एक एनालॉजी यूज करूंगा. सभी को आपको पता है कि आपने घर बनाते हैं हम लोग, राइट? तो घर बनाने के लिए सब में पहले हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को एक प्लॉट लगता है. यस और नो? डू यू नो व्हाट इज प्लॉट? एक जागा लगते है आपल्याला, बराबर है? बिना जगह के हम लोग कभी घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. ठीक है. तो उस प्लॉट पे हम लोग क्या करते हैं, उस प्लॉट पे हमारा हाउस बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा प्लॉट था और यहाँ पे ये मैंने घर बना लिया. ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो दिस प्लॉट इज नथिंग बट योर होस्टिंग. दिस प्लॉट इज नथिंग बट योर होस्टिंग. और जो बिल्डिंग आपने बनाई और उस बिल्डिंग को आप लोगों ने नाम दे दिया, लेट्स से एबीसी, जैसे जलसा वगैरह ऐसे कुछ नाम होते हैं बिल्डिंग्स के. ठीक है. तो ये उसको नाम दे दिया, तो ये हो गया डोमेन नेम. ठीक है. तो जब भी कोई लेट्स से चांदवड़ में आपका जलसा नाम का बंगलो है, जब भी कोई चांदवड़ में आएगा उसको बोलेंगे हम लोग जलसा में जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इस बंगले के आगे खड़ा करा देगा. समझ में आ रहा है? अगर आप लोग ऑटो वाले को बोलोगे मुझे जलसा बंगले के पास जाना है, तो वो क्या करेगा? आपको इस घर के सामने लाके खड़ा कर देगा. तो इसका मतलब क्या है कि आपके बंगले का नाम है जलसा. ठीक है. और ये आपका प्लॉट था. उसी एनालॉजी को अभी समझ लो कि जब हम लोग वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, तो वेबसाइट को ऑनलाइन अगर आपको लेके जाना है तो आपको एक प्लॉट लगेगा. प्लॉट मतलब क्या होता है? होस्टिंग. प्लॉट मतलब क्या हो गया? होस्टिंग. तो आपको कुछ तो साइज का होस्टिंग लगेगा. तो जैसे 1 GB है आपकी वेबसाइट का, कितना आप लोग यूज करने वाले हो, कितना डेटा आपको उसको स्टोर करना है, तो आपको ये होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है. ये होस्टिंग आपको क्या करनी पड़ती है? परचेज करनी पड़ती है. तो आप लोग पहले होस्टिंग परचेज करोगे. तो ये होस्टिंग परचेज करने के बाद, जैसे ही आप लोग होस्टिंग परचेज कर लोगे, उसके बाद आता है डोमेन नेम. आप आपके बंगले को कुछ तो नाम दोगे. उसी तरीके से आप आपकी वेबसाइट को कुछ नाम दोगे. जैसे कि facebook.com है, राइट? उसके बाद google.com है. तो ये क्या हो गया? आपके डोमेन नेम. तो ये हो गया आपका डोमेन. गूगल, फेसबुक, ये हो गया डोमेन. जैसे आप लोग बंगले को नाम देते हो, उसी तरीके से आप आपकी वेबसाइट को नाम देते हो. ठीक है. तो जैसे आपने अगर कोई वेबसाइट बना लिया, जैसे हर्षल जादव ने आंसर किया, तो मैं यहाँ पे हर्षल.com इस तरीके की वेबसाइट का डोमेन ले लो, हर्षल.com. तो ये हर्षल मेरा क्या हो गया? डोमेन नेम. ठीक है. तो एक बार मैंने डोमेन नेम परचेज कर लिया. ये परचेज करना पड़ता है नॉर्मली. ठीक है. तो ये परचेज कर लिया मैंने, मेरा होस्टिंग परचेज कर लिया. यहाँ पे मैंने होस्टिंग भी परचेज कर लिया. तो दो चीजें परचेज करने के बाद ये दोनों चीजें मुझे कनेक्ट करनी पड़ती है. तो एक बार मैं दोनों चीजों को कनेक्ट कर दूं, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस प्लॉट पे मैं वेबसाइट को डेवलप करूंगा. इस प्लॉट को मैं क्या करूंगा? डेवलप करूंगा. और उस डेवलपमेंट को बोलते हैं हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट. उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट. तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? सब में पहली चीज क्या है कि वेब होस्टिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया. इट इज जस्ट लाइक योर प्लॉट. ठीक है. जहां पे आप लोग बिल्डिंग बनाते हो. और जो डोमेन होता है वो क्या होता है? आपके हाउस का नेम. उन दोनों को आपको कनेक्ट करना पड़ता है.
एक बार वो दोनों कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करोगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करोगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In between, if you have any doubt or if you have any question, you can immediately ask. Okay, so that is the two things which are important in web development and deployment. This is the most important part, deployment में ये दोनों चीजें हमको जरूरी ही होती है, वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम। ओके, सो अभी डोमेन नेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो वेब होस्टिंग हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली वेब होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे डोमेन नेम्स के बारे में। तो डोमेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये नाम होता है, ठीक है। डोमेन नेम जैसे GoDaddy है, ठीक है, godaddy.com। तो ये डोमेन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कॉम हो सकता है, इन हो सकता है, यूके हो सकता है, एयू हो सकता है, एई हो सकता है। ये अलग अलग डोमेन्स के एक्सटेंशंस हैं। जैसे आपने देखा होगा sngb.org, तो ये org एक एक्सटेंशन है। sngb को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, edu जो एक्सटेंशन होता है उससे हम लोग को समझ में आ जाता है ये एजुकेशनल साइट है, जैसे एजुकेशनल साइट। सो edu एक्सटेंशन ये फोकस करता है कि ये एजुकेशनल साइट है, ठीक है। .com है तो इट्स अ जनरल पर्पस वेबसाइट, .in है तो ये इंडिया है, ठीक है, .uk है तो ये यूनाइटेड किंगडम है। तो इस तरीके से ये अलग अलग एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो आपको जिस टाइप की वेबसाइट बनानी है, जैसे आप लोगों को अगर मैंने बोल दिया कि कॉलेज के रिलेटेड वेबसाइट करो, कॉलेज के रिलेटेड वेबसाइट बना, तो आप डोमेन जो ढूंढोगे उसका एक्सटेंशन ढूंढोगे edu, ठीक है। आपका कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास है, ठीक है, अगर उसकी वेबसाइट आपको बनाना है तो आप ढूंढोगे edu। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर आपकी कोई इंफॉर्मेटिव साइट है, जैसे आप लोगों को हिस्ट्री में कुछ हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप .com एक्सटेंशन ले लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग एक्सटेंशन अलग अलग काम के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स? सो डोमेन्स के रिलेटेड एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यू कैन यूज इट। तो आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि दो चीजें होती है, होस्टिंग एंड डोमेन। तो डोमेन को यूज करने के पहले आपको उसको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है कि कौन ये डोमेन को यूज कर रहा है, हु इज द ओनर ऑफ दिस डोमेन, ठीक है, उसका कितना अमाउंट उसने पेड किया है, उसका आईपी क्या है। हर एक डोमेन को एक आईपी भी होता है, उसके बारे में मैं टेक्निकली आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में क्योंकि आपको कंफ्यूज होगा। तो एक चीज याद रखो कि जब भी आप लोगों को डोमेन को यूज करना है उसका रजिस्ट्रेशन करना आपको बहुत जरूरी होता है। और वो रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब आप उसको पेमेंट करके परचेज करोगे तब। क्लियर? उसके बाद एवरी डोमेन नेम इज अ यूनिक। तो आपने जो भी डोमेन परचेज किया है एक बार वो आपको असाइन हो गया, जैसे आप लोगों ने harshal.com ये डोमेन आपने परचेज किया, तो पूरे वर्ल्ड में अभी harshal.com ये डोमेन किसी का नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा ये डोमेन। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये यूनिक होता है। समझ में आ रहा है? तो harshal.com एक बार आप लोग डोमेन परचेज कर लोगे तो वो harshal.com किसी को नहीं मिलेगा, ये चीज भी आप लोग समझ लो। उसी तरीके से google.com है, आपने देखा कि google.com के दो अलग साइट है, ऐसा कभी देखा है आपने? जब आप लोग google.com डालते हो इंटरनेट पे, कभी दूसरा ओपन हो गया और कभी तीसरा ओपन हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? No, ऐसा कभी sir. देखा है आपने? नो। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो डोमेन होते हैं वो हमेशा यूनिक ही होते हैं। क्लियर? रेप्लिकेशन अलाउड नहीं होते उसमें। नो टू वेबसाइट्स कैन हैव द सेम डोमेन नेम। वही चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई दो वेबसाइट को सेम नेम नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है कि flipkart.com है, snapdeal.com है, paytm.com है, ये कुछ डोमेन्स के और डोमेन एक्सटेंशन के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन द कंटेंट्स, ठीक है। सो वेबसाइट के अंदर आप लोग क्या क्या दिखा सकते हो? वेबसाइट के अंदर आप लोग फोटोज लेते हो, ठीक है, कुछ लोग वेबसाइट के अंदर वीडियोस भी दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स में टेक्स्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ देखा है आपने कि कोई वेबसाइट पे होता है? इसके अलावा कुछ होता है वेबसाइट में? कुछ लोग ऑडियो भी देते हैं, नहीं, ऑडियो sir. होता है, कोई कोई वेबसाइट में ऑडियो होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ होता है वेबसाइट में? हेलो? Animation pictures. एनिमेशंस होते हैं, ओके। पिक्चर्स मतलब वही ना, फोटोज ही होगा ना, पिक्चर्स मतलब हाँ, फोटोज yes. ही हुआ। तो उसको छोड़ के कुछ है क्या? तो आपको वेबसाइट डेवलप करना है। वेबसाइट अगर आपको डेवलप करना है तो आपको किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप किस तरीके से फोटोज को यूज कर सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर, किस तरीके से वीडियोज को यूज कर सकते हो, किस तरीके से टेक्स्ट को यूज कर सकते हो,
किस तरीके से ऑडियोज को यूज कर सकते हो और किस तरीके से एनिमेशंस डाल सकते हो। इन सभी को मिला के ही आप लोग वेबसाइट बनाते हो। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ नहीं। आर यू ऑल एग्री? क्योंकि कोई भी वेबसाइट देख लो आप लोग, इसके अलावा कुछ होता है क्या वेबसाइट के अंदर? No, sir. फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियोज, इनको छोड़ के कुछ नहीं होता, राइट? तो आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपको सीखना क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर फोटोज कैसे ले, वेबसाइट के अंदर वीडियोज कैसे ले, वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट कैसे ले, ऑडियोज कैसे ले और एनिमेशन कैसे ले। समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो नाउ वेबसाइट किस तरीके से आप लोग बना सकते हो? ठीक है, तो दो तरीके हैं वेबसाइट बनाने के। पहला तरीका है सीएमएस। सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये पहला तरीका है। पहले तरीके में आप लोग क्या करते हो, आपके पास रेडीमेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायरस्पेस, जुमला, शॉपिफाई, ड्रूपल, ब्लॉगर, प्रीस्टाशॉप, ये कुछ सीएमएस है। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इनको यूज करके आप लोग वेबसाइट बना सकते हो। नॉर्मली ये आप लोगों ने वर्ड बहुत बार सुना होगा, वर्डप्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रेडीमेड एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आपको सिंपली इनका यूज करके ड्रैग और ड्रॉप करना होता है। आपके पेजेस डिजाइन करने होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मतलब ऑलरेडी आपका, लेट्स से अगर ये आपका पेज है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, विजेट्स मिल जाएंगे, जैसे बटन्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट व्यू मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ से ड्रैग करना है, आपके पेज पे उसको ड्रॉप करना है। यहाँ से उठाया ड्रैग, यहाँ पे किया ड्रॉप, आपका वेब पेज रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है वेबसाइट बनाने का। सीएमएस इज अ सिंपल वे टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज करके आप लोग वेबसाइट बनाते हो, तो उनको बोलते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो वे होता है उसको बोलते हैं यूजिंग कोड। तो कोड के थ्रू अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, पीएचपी क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक्सेट्रा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस चीजें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है, उन चीजों का भी नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो। फर्स्ट वे सीएमएस, जो कि वर्डप्रेस होता है, विक्स होता है, ये कुछ एग्जांपल्स है सीएमएस के, इनके थ्रू बना सकते हो। और दूसरा वे है आप कोड के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको कोड पे फोकस करने वाला हूँ कि कोड के थ्रू आप लोग किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू दिस। हम लोग कोड पे स्विच करने के पहले और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये दोनों सेम चीजें हैं कि डिफरेंट है? वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये दोनों सेम चीजें हैं कि डिफरेंट है? आपका ओपिनियन क्या है इस पे, मुझे ये जानना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेब। Different. सो व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है डिफरेंस? कोई बता सकता है मुझे? आंसर गलत भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर है क्या, वो मुझे चेक करना है। तो क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? शिरीष Kernar, you are answering something but your voice is not clear. Any other student would like to? हाँ, हर्षल। The website have URL and web applications doesn't have URL. No, it is not like that. It is not like that. Both the things have a, yes, both. Just a minute, Shirish, your voice is not clearly audible. Okay, just a minute. वेब एप्लीकेशन एंड वेब साइट दोनों को यूआरएल होता ही है, उनको एड्रेस होता ही है। यूआरएल इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व्हिच इज लाइक अ एड्रेस। ठीक है, तो वो दोनों को होता है। यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? सर, वेबसाइट इंफॉर्मेशन कंटेन करती है और वेब एप्लीकेशन में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली, थोड़ा पार्शियल आंसर राइट है आपका। हाँ हाँ, अमेज़न को हम वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और वेबसाइट किसको बोल सकता है फिर? वेबसाइट जो हम कोड से क्रिएट करते हैं। दोनों चीजें कोड से क्रिएट करते हैं हम लोग, दोनों चीजें कोड से क्रिएट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। वेबसाइट जो होती है नॉर्मली वो इंफॉर्मेटिव होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, और इस पे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो प्रेजेंटेशन पे फोकस किया जाता है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, वेयर एज वेब एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रोसेसिंग। नाउ प्रोसेसिंग मतलब क्या, अभी उसके बारे में बताता हूँ। देखो, वेबसाइट में क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है,
ठीक है, कंप्यूटर के पास या फिर सर्वर्स के पास, सर्वर इज द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उस वेब पेज को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे रिक्वेस्ट भेजी आपने google.com की, आपने google.com की रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर आपको google.com का पेज ओपन करके दिखाएगा। वेयर एज ये होता है वेबसाइट में, दिस एनालॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, ठीक है। वेयर एज वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, यूजर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, दिस इज द सर्वर, यूजर कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के साथ, उसके साथ कुछ डेटा भी भेज रहा है। जैसे उसने ए और बी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, ये दो चीजें वो भेज रहा है सर्वर के पास। अभी सर्वर का काम क्या है, सर्वर का काम है कि क्लाइंट ने उसको क्या बोला, इन दोनों की एडिशन करके दो, तो वो यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करेगा, तो यहाँ पे उसका एडिशन होगा 5 और वो क्लाइंट को क्या करेगा, आंसर देगा 5। तो ये हो गया ऑपरेशन, ये हो गया ऑपरेशन, और यू कैन कॉल इट एज अ प्रोसेसिंग, और यू कैन कॉल इट एज अ प्रोसेसिंग, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वर पे क्या हो रही है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, और उस प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज रहे हो। तो यहाँ पे ये आता है, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, ये जो प्लस लगाया ना मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो नॉर्मली जब वेब एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, तो वेब एप्लीकेशन में कुछ तो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको डेटा मिलता है। वेयर एज आप लोगों को वेबसाइट में क्या होता है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो और उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस। तो जैसे उसने एग्जांपल दिया कि फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, अमेजोन का दिया, ठीक है, अमेजोन के दिया, तो ऐसे कुछ ये क्या है, ये वेब एप्लीकेशन आप लोग इनको बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कूपन कोड लगा रहे हो, आप उसको परचेज करते हो, कार्ट में ऐड कर रहे हो, कार्ट से रिमूव कर रहे हो, राइट। वेयर एज snjb.org है, ये जो है snjb.org/polytechnic, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो दैट यू कॉल एज अ वेबसाइट, दैट यू कॉल एज अ वेबसाइट। और हमारा एसएनजेबी पॉलिटेक्निक बनाने का रीजन क्या है, हम लोग इसको इंफॉर्मेटिव ही बना रहे हैं, सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन देना है, इसके लिए हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाया है। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों के बीच में, यस और नो? हेलो हेलो, Yes, sir. सभी को समझ में आया डिफरेंस? Yes, sir. एग्जैक्टली, ओके Yes, sir. okay, good. So now we will focus on the programming language which is used for creating the web pages. Okay, so HTML is one of the markup language through which you can create the web pages, so who would like to answer what exactly is the HTML and what do you know about HTML? Anybody from you can speak about HTML, whatever you know you can speak. Yes, Sir, HTML is a just a minute, hypertext markup language. Rohit will answer first, then we will ask another student. Yes, Rohit. Sir, HTML is a hypertext markup language. In that we will develop a code in a web browser and we will implement this code in the browser. We never write the code in a web browser. We write the code in a Notepad or Edit++, Notepad++. Yes, sir. We have a different software where we write the code and we Yes, run sir. that code on a web browser. That is what you wanted to say, right, Rohit? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continue, Rohit. Yes, any other answer? Any other answer? Hello, sir. Yes, sir, Ruchi. Also HTML use CSS cascaded style sheet. Okay, very good point which you have mentioned, CSS, which I am going to cover today. CSS के बारे में भी हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। No, it is not mandatory that you should speak in English only. आप लोगों को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आंसर देना, उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो, ठीक है। Any other point apart Sir, from HTML? HTML have various tags and the tags have number of attributes. HTML have various tags. That means इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, अलग अलग टैग्स है, और अलग अलग टैग्स का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, वेब पेज बिल्ड कर सकते हो। Yes or no? Yes, sir. So can you give me some name of the tags? Can you tell me some tags name? H1, H2. Okay, H1 tag, Slash P- HTML slash PG body. color. Paragraph. PG Paragraph color. tag. PG color, Paragraph. पैराग्राफ। Image. पैराग्राफ के लिए आपको p टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। Yes. हम्म। Image. इमेज टैग, ओके। ये तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही नहीं बताया ना आप लोगों ने।
body, head, body, हाँ, सब में Body. पहला इंपॉर्टेंट टैग जो होता है Head, वो body. HTML टैग होता है। सब में इंपॉर्टेंट टैग जो होता है वो HTML होता है। उसके बाद आता है हेड, राइट? उसके बाद आता है टाइटल। यस और नो? Yes, sir. तो ये सब में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसके बिना आप लोग ये कुछ यूज नहीं कर सकते। यस और नो? Yes, sir. Okay. So I hope everybody knows about HTML. So I will not waste much of the time in discussing all these things, but understand what exactly is the HTML. HTML is a language. It's a markup language through which you can create the web pages. Okay. And web pages create करने के लिए आपको कुछ syntax है. Syntax है. I'm sorry. कुछ syntax है. उस syntax का use करके आपको tags लिखने हैं और उस tags के थ्रू आपका वेब पेज बिल्ड होता है। ठीक है? ये एक सिंपल डिस्कशन है HTML के बारे में। नाउ HTML का कोड हम लोग लिखते कैसे हैं उसके बारे में फोकस करेंगे। तो सब में पहले आता है HTML का पार्ट। ठीक है, इसको एक मिनट इस स्लाइड को देखने से पहले इसको मैंने फेयर किया था ये स्लाइड को, तो आगे की स्लाइड में ओपन करता हूँ। सी दिस, इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, HTML का डॉक्यूमेंट लिखते हो। सब में पहली लाइन आती है दिस HTML टैग, बराबर है। अभी HTML का एक लेटेस्ट वर्जन आया है 05, HTML 05 बोलते हैं उसमें उसको। ठीक है, तो उसका अभी आपको पता है विंडोज XP था, ठीक है, उसके बाद विंडोज 10 आया, विंडोज 11 आया, विंडोज 12, इस तरीके से विंडोज के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग वर्जन आ रहे हैं उसमें क्या होता है, फीचर्स बढ़ के आते हैं। यस और नो? विंडोज 6 से ज्यादा फीचर थे विंडोज 7 में, विंडोज 7 से ज्यादा फीचर विंडोज 8 में, विंडोज 8 से ज्यादा फीचर विंडोज 9 में। यस और नो? Yes, sir. उसी तरीके से Yes. HTML का भी जो पहले का वर्जन था, अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो है 5। ठीक है, तो इसमें HTML से कुछ ज्यादा टैग्स यूज होने लग गए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपका कोड इस तरीके से स्टार्ट होता है, HTML का कोड अगर आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप HTML अगर इस तरीके से स्टार्ट होता है, तो दिस इज अ डिक्लेरेशन, इट डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज अ HTML5 डॉक्यूमेंट, इट्स अ HTML5 डॉक्यूमेंट। अगर आप HTML इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रीवियस वर्जन डॉक्यूमेंट। क्लियर? उसके बाद सेकंड टैग जो होता है वो हेड टैग होता है, जिसके बारे में आपको पता है, इट कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। तो ये मेटा इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। हेड के अंदर और टाइटल के अंदर आप लोग जो भी लिखते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो ये आपका वेब पेज है, ठीक है, लेट्स से अज्यूम दिस इज अ वेब पेज, और ये आपके पेज का ऊपर का पार्ट है। तो जो भी आप हेड और टाइटल में लिखोगे वो आपके यहाँ पे ये आपकी पेज बॉडी है, पेज बॉडी। ठीक है, ये आपकी पेज बॉडी है। तो जो भी आप लोग हेड और टाइटल में लिखते हो वो सब ऊपर आता है, यहाँ पे दिस पार्ट में आएगा। पेज के ऊपर आपको इन दोनों के टैग्स के अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं मेटा इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। सुना है क्या आप लोगों ने मेटा डेटा वर्ड? Yes, sir. सो Yes, मेटा sir. डेटा क्या होता है? इट्स अ डेटा अबाउट अ डेटा, इसका वो डेफिनेशन है, डेटा अबाउट अ डेटा। तो हेड और टाइटल में आप लोग जो भी लिखते हो वो पेज बॉडी के अंदर नहीं आता है, वो हेडर में आता है, यहाँ पे आता है वो सब। ठीक है, तो हेडर का काम क्या है, हेड टैग का काम क्या है, इट एलिमेंट कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड HTML पेज। टाइटल पेज का काम क्या है कि आपके पेज को क्या टाइटल देना है वो आप लोगों को टाइटल में दे सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी टैग, जहां से आपका पेज का बॉडी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आप लोग पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, इन सभी टैग्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बॉडी के बाद आता है H1 टैग, P टैग, कोई भी टैग जो आप लोगों को यूज कर रहा है आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt Yes, related sir. to this? No, sir. ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ HTML एंड HTML5। ठीक है, what are the features which are available in HTML which are not available in HTML5, or what are the new features which are available in HTML5 that we are going to see. So HTML stands for what? It's a hypertext markup language, is the primary language used for developing the web pages. ठीक है, whereas HTML5 is a new version of HTML with new functionalities, with a markup language, with internet technologies. ठीक है, तो ये एडवांस वर्जन है HTML5 HTML से। तो जो फीचर्स HTML के थे वो सभी फीचर्स HTML5 में तो है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। मल्टीमीडिया सपोर्ट, तो लैंग्वेज जो थी यहाँ पे HTML में था, लैंग्वेज इन HTML डज नॉट हैव सपोर्ट फॉर वीडियो एंड ऑडियो। दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग अ HTML, कि पहले की जो HTML थी वहां पे आप लोग सपोर्ट नहीं करता था वीडियोज एंड ऑडियोज।
ठीक है। वेयर एज अगर आप लोग डॉक टाइप से HTML5 का पेज बना रहे हो तो आप उसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों चीजों को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, HTML5 के अंदर। वेयर एज स्टोरेज के बारे में बात करना तो HTML ब्राउजर यूजेस कैचे मेमोरी एज अ टेम्पररी स्टोरेज। तो आपको ब्राउजर के अंदर कुछ कैचे मेमोरीज थी, वहां पे आपका डेटा क्या होता था, स्टोर होता था HTML के ब्राउजर्स के अंदर, ठीक है। वेयर एज HTML5 के अंदर आप लोग जो डेटा आप लोग सर्च कर रहे हो या फिर जो भी डेटा आप लोग यूज कर रहे हो वो आप एप्लीकेशन कैचे, SQL डेटाबेस एंड वेब स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे कैचे मेमोरी का प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपका सिस्टम एक बार शटडाउन हो जाए, अगर आपका सिस्टम शटडाउन हो जाए या फिर रिस्टार्ट हो जाए तो कैचे मेमोरी का सब डेटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है। वेयर एज आप लोग HTML5 का यूज कर रहे हो तो आप लोग वो सब डेटा बैक एंड में या फिर हार्ड स्टोरेज में उसको स्टोर करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम शटडाउन भी हो जाए आप फिर से उसको उस डेटा को आप लोग देख सकते हो। समझ में आ रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML5? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. okay, so now we will see some basic part we will see about HTML कि HTML के प्रोग्राम्स किस तरीके से रन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप HTML के प्रोग्राम रन कर सकते हो, ठीक है। सो ऑनलाइन HTML कंपाइलर, हैव यू हर्ड द वर्ड ऑफ XAMPP? XAMPP सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है? डू यू नो व्हाट इज XAMPP No, सॉफ्टवेयर? sir. ओके No, sir. ओके, सो जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं ऑनलाइन HTML कंपाइलर, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है सभी स्टूडेंट्स के पास, राइट? मुझे सर ने बोला कि आपको, आपके पास बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम रन कर सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर्स में, ठीक है। नाउ सी दिस, यहाँ पे देखो index.html ये हमारा पेज है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होता है पेज वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये HTML5 का वेब पेज है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग हेड टैग यूज करते हो, उसके बाद टाइटल यूज करते हो। तो टाइटल क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन होती है, जो पेज आप लोग बना रहे हो उसका टाइटल यहाँ पे सेट होता है हेलो वर्ल्ड से, ठीक है। यहाँ पे हमको लिंक टाइप की जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है एग्जैक्टली ये। उसके बाद हेड टैग हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग, सभी को पता है ये बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें सेट कर सकते हो। जैसे मैं H1 टैग यूज करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वेलकम टू SNJB COE, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसको रन करता हूँ सी दिस। ओके, ये मुझे लॉगिन के लिए पूछा है, ठीक है। हम लोग दूसरा एक कंपाइलर ढूंढते हैं। ट्यूटोरियल्स फाइंड का एक कंपाइलर है ऑनलाइन HTML कंपाइलर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है। ओके, सो हियर आई गॉट इट, ठीक है। अब इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सी दिस, यहाँ पे मैं इस HTML को हटा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं डॉक टाइप HTML लिख रहा हूँ, हेड टैग है हमारे पास, बॉडी टैग है, H1 टैग है। यहाँ पे आपको बोल्ड में दिख रहा है हेलो वेलकम टू SNJB COE, क्योंकि मैंने ये H1 में डाल के रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको पता है, यस और नो? दिस इज जस्ट अ बेसिक Yes, sir. थिंग। और यहाँ पे Yes, HTML sir. टैग जो होता है, ये जो HTML टैग होता है ये एट द एंड में क्लोज होता है। यहाँ पे HTML स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है और वो एंड में एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप लोग बॉडी के साथ कुछ अलग अलग टैग्स यूज कर सकते हो। जैसे मुझे अगर BG कलर सेट करना है तो मैं यहाँ पे BG कलर यूज करके BG कलर को सेट कर सकता हूँ, रेड, ऑरेंज, जिस तरीके से मुझे चाहिए उस तरीके से मैं कलर्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो कंपाइलर है ट्यूटोरियल पॉइंट्स का, वहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस पे आप आपका आउटपुट चेक कर सकते हो। जैसे ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है, अगर मुझे मोबाइल प्रीव्यू देखना है तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट लैंडस्केप टाइप का मोबाइल है तो उस लैंडस्केप पोजीशन में वो कैसे दिखेगा इसका भी मैं यहाँ पे आउटपुट देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे BG कलर के थ्रू मैंने क्या किया, कुछ कलर सेट किया है। उसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों को लिस्ट यूज करना है, पैराग्राफ यूज करना है, तो P टैग आप लोग यूज कर सकते हो। ये P टैग आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। P टैग से क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो ये अलग अलग टैग्स आप लोग यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट HTML कोड, yes or no? Have you understood this?
Yes, sir. Now Yes, sir. some Yes, some of the features of HTML5, I have told you that you can use the videos here. You can use the videos, yes or no? So how to use the videos inside your web page, that we are going to see now. तो वीडियो यूज, अगर आपको आपके वेब पेज में अगर वीडियो डिस्प्ले करवाना है तो आपके पास टैग होता है वीडियो, या आपके पास टैग है वीडियो। ओके, तो वीडियो लिखने के बाद आपको अगर वीडियो के साथ कंट्रोल्स भी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रोल्स, और यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू। तो मैं ये कंट्रोल्स ट्रू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो के साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड ये जो कंट्रोल्स होते हैं उसको भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वीडियो कंट्रोल्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी वीडियो आपको कौन सा प्ले करना है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सोर्स, उसके लिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा सोर्स, कौन सा सोर्स आपको चाहिए, और उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लिंक। वीडियो सोर्स SRC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग दोगे लिंक जो आपको वीडियो प्ले करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल का कोई वीडियो प्ले करूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। यूट्यूब चैनल में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई तो एक वीडियो का लिंक ले लूंगा जिसको हमें प्ले करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई वीडियो है, लेट्स से कोटलिन प्रोग्रामिंग का वीडियो, इसको मैं लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ये लिंक कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस SRC में उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी वीडियो की लिंक। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन से टाइप का वीडियो है, वो वीडियो हो सकता है और MP4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, आपके वीडियोस हो सकते हैं। तो उस वीडियोस का फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे व्हाट इज द इशू, SRC टैग में नेम्ड एंटिटी एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे ये वीडियो, दूसरा लिंक लेता हूँ मैं, कॉपी लिंक एड्रेस, SRC टैग समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या डालना पड़ता है सीधे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वीडियो SRC में एक वीडियो का मैंने URL दे दिया जो वीडियो मुझे प्ले करना है, और उसका टाइप भी दे दिया। टाइप आपको सेट करना पड़ेगा वीडियो और MP4, जो भी आपका वीडियो का टाइप हो वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसके बाद वीडियो को यहाँ पे क्लोज करना है। तो जैसे आप लोग प्रीव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा, सीधे दिख रहा है। अभी ये एक ऑनलाइन कंपाइलर में यूज करो तो ये वीडियो लोड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक सेक्शन आ जाता है, उस सेक्शन के अंदर आपका वीडियो आप लोग प्ले कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग ऑडियोज को भी प्ले कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो ये कुछ फीचर्स है जो आप लोग HTML5 के अंदर यूज कर सकते हो। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू HTML। ओके, नाउ किसी ने एक पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पे CSS के बारे में। ठीक है, तो CSS एग्जैक्टली क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू नो अबाउट CSS? क्योंकि अभी इसके बारे में अगर मैं ज्यादा बात करूँ तो आपको पता है कि लिस्ट कैसे लेना है, आपको पता है टेबल कैसे लेना है। डू यू नो ऑल द टैग्स? Do you know how to take the list? Now list will be of two type: order list, unordered list. Yes or no? Yes, sir. Okay. तो वो टैग्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। Do you know what exactly is a CSS? CSS मध्ये रेडीमेड टेम्पलेट बनवून ठेवायचं, नंतर ते दुसऱ्याला अप्लाय करता येतं. Okay. Any other answer? Used to style websites. It is used to style a website. ठीक है, अभी CSS को अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली CSS क्या होता है। ठीक है, HTML और CSS के अंदर डिफरेंस क्या है? HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये होते क्या है, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, जब मैं कोई कार परचेस करता हूँ, कार का मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, कार का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? तो ये कुछ कार इस टाइप की पहले स्ट्रक्चर बनता है। यस और नो? पहले कार का स्ट्रक्चर बनता है। डू यू ऑल एग्री? Yes, पहले स्ट्रक्चर बनता है। तो HTML is used for creating the structure. Understand this. जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिकॉज ऑफ द HTML बनता है। समझ में आया ये पार्ट? ये पार्ट समझ में आया? उसके बाद CSS क्या होता है? अगर मैं इसको कुछ कलर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इस कार को कुछ कलर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस कार को कुछ कलर दिया, उसके बाद उसके टायर्स को कुछ कलर दिया, ठीक है, उसके बाद इस कार को कुछ कलर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ कलर दिया। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ही बोलेंगे ना हम लोग उसको, किस तरीके से मैं उस कार को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो प्रेजेंटेशन का काम है, ये काम होता है CSS का।
सो CSS इज ऑल रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, किस तरीके से वो आपका पेज दिखना चाहिए, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी डील्ड बाय CSS। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. और व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका कार की कीज का सेक्शन है, आप की डालते हो, कार को स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। यस और नो? जब भी आप लोग क्या करते हो, कीज डालते हो, कीज से आप लोग कार स्टार्ट करते हो, आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ बिहेवियर है कार का, ये कार का बिहेवियर है। तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर हम लोग HTML से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, कलर जो हम लोग डालेंगे, किस तरीके से वो कार दिखनी चाहिए, ये काम होता है CSS का। और उसके कार का जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब क्या, ब्रेक प्रेस करने के बाद आपकी कार रुक जाती है, एक्सेलरेटर देने के बाद कार भागती है, बराबर है। उसके बाद कीज देने के बाद आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। ये जो बिहेवियर है ये आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तीनों का डिफरेंस समझ में आया आपको? Yes, sir. सभी को तीनों का डिफरेंस समझ में आया? ओके, सो CSS, Yes, अभी अगर sir. मैं CSS के बारे में बात करूं तो आपको समझ में आ गया कि CSS इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन। CSS इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, किस तरीके से चीजें दिखनी चाहिए। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये स्टेटमेंट पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली CSS क्या होता है। ठीक है, CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in a CSS. तो ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या है इन दोनों तीनों लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि CSS एग्जैक्टली क्या होता है। CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen. CSS describes how HTML elements means how the structure which we have designed to be displayed on the screen. So what should be the color, what should be the alignment, what should be the font, ये सब चीजें कौन केयर करेगा? CSS केयर करेगा। क्लियर? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो हाउ टू यूज द CSS को आप लोग किस तरीके से यूज करते हो? तो CSS को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप लोग HTML के पेज के अंदर ही आप लोग CSS लिख सकते हो। HTML के पेज के अंदर ही आप लोग CSS लिख सकते हो। जैसे ये HTML का पेज है, आपका HTML है, देखो ये HTML का पेज है, यहाँ पे आपको हेड टैग भी दिख रहा है, बॉडी टैग भी दिख रहा है, पी टैग भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्टाइल टैग के अंदर आपने CSS को लिख दिया, स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, ये आपने कुछ स्टाइल दे दी। ठीक है, तो ये होता है HTML के पेज के अंदर ही आप लोग उसको क्या कर रहे हो, स्टाइल दे रहे हो। और दूसरा वे जो है, सेपरेट फाइल आप लोग बना सकते हो। सेपरेट फाइल आप लोग बना सकते हो। लेट्स से मैंने नाम दे दिया a.css, ये फाइल बनाया। इस फाइल में मैं क्या कर दूंगा, ये सब कोड, ये जो इतना स्टाइल वाला कोड है, ये सब कोड मैं a.css के अंदर डाल दूंगा और HTML फाइल में उसका रेफरेंस दे दूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, CSS को यूज कर सकता हूँ। तो अभी दोनों वे को किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट वे कि HTML के अंदर ही आप लोग उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ सी दिस, यहाँ पे आपका ये कोड है जो हम लोगों ने बनाया है। जैसे मैं यहाँ पे और एक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, लेट्स से कोई टैग ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं आई एम फ्रॉम SNJB फैमिली। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ मेनी टैग्स आई एम हैविंग हियर इन अ बॉडी टैग। बॉडी के अंदर मेरे पास 3 टैग है। पहला टैग जो है वो H1 है, दूसरा है P और तीसरा है H2। H1, P एंड H2, ये 3 टैग है। ये समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, अभी लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इन H1 टैग का कलर चेंज करना है। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी इसके बैकग्राउंड में क्या है, H1 के बैकग्राउंड में रेड कलर है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर का ही कलर क्या कर दिया, सीधा रेड सेट कर दिया। अभी मैं उसको हटा देता हूँ, सीधे यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस H1 टैग जो है हमारा हेलो वेलकम टू SNJB COE, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टाइल टैग। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल का क्लोज, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल का क्लोज, उसको मैं नीचे ले लेता हूँ। और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको टैग का नाम पता होना चाहिए। तो टैग का नाम क्या है, किसको आपको सेट करना है, कौन से टैग को आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है, H1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1. H1 के अंदर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर कोलन, बैकग्राउंड कलर या फिर
हाँ बैकग्राउंड कलर ही प्रॉपर्टी उसकी, तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ लेट्स से ऑरेंज, इस तरीके का मुझे कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिस टैग को मुझे कलर सेट करना है उसका नाम लिख दिया, और उसके आगे मैंने ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया, और जो जो प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए मैंने उसके अंदर डाल दी। अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो सीधे मुझे इसके यहाँ पे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे और एक H1 टैग ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं और एक H1 टैग ऐड करता हूँ कि माय नेम इज अमित, इस तरीके से मैं H1 टैग ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे सेपरेटली मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्टाइल शीट यूज नहीं करता, अगर मैं ये चीजें यूज नहीं करता, तो मुझे 1 बाय 1 दोनों को क्या करना पड़ेगा, कलर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टाइल शीट यूज कर रहा हूँ, मतलब CSS यूज कर रहा हूँ, तो मैं अगर H1 को कुछ कलर असाइन कर रहा हूँ, तो आप बॉडी में कितने भी H1 ले लो, वो सभी को क्या कर देगा, ऑरेंज कलर असाइन कर देगा सीधे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग स्टाइल शीट या फिर CSS यूज नहीं करते हैं, तो हर टैग को सेपरेटली आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेटली आप लोगों को उसके कलर्स, उसके बैकग्राउंड या फिर जो भी आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो आप लोगों को करनी पड़ती है। बट अगर आप लोग स्टाइल शीट यूज करते हो, तो आप सिर्फ एक बार उसको लिखते हो, वो जहां जहां पे उसको H1 टैग मिलेगा वहां पे उसके चेंजेस कर लेगा। तो ये एक एग्जांपल बताया। उसी तरीके से अगर मुझे लेट्स से मैं P टैग को मैं कुछ इफेक्ट सेट करता हूँ, जिससे मुझे क्या करना है, उसको अलाइन करना है सेंटर में। सो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे मैं करता हूँ सेंटर, ठीक है। तो जैसे मेरा पैराग्राफ टैग लॉरम इप्सम, ये मेरा लेफ्ट साइड में है, तो मुझे उसको सेंटर में लेना है, तो मैंने क्या किया, P टैग को सेंटर में ले लिया। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे उसका आउटपुट सेंटर में दिख जाएगा। दिख रहा है आपको सभी को? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द वे यू क्रिएट द CSS। और इस तरीके से आप लोग HTML के पेज में क्या कर रहे हो, अभी आप लोग CSS लिख रहे हो। मैंने दो सेपरेट फाइल नहीं बनी है यहाँ पे, मेरा ये HTML कोड था, उसी के अंदर मैं CSS लिख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? Yes, अभी मैं sir. आपको Yes, दूसरा वे sir. बताता हूँ। अभी मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ। दूसरे वे में हम लोग क्या करेंगे, CSS की फाइल अलग जगह पे होगी, HTML की फाइल अलग जगह पे होगी, और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और इफेक्ट्स देने का काम करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो सब में पहले ये करने के लिए मुझे लगेगा XAMPP सॉफ्टवेयर। तो XAMPP के बारे में मैंने आपको पूछा था कि एग्जैक्टली डू यू नो व्हाट इज XAMPP? सो XAMPP ये क्या है, ये आपके वेब एप्लीकेशंस को रन करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को सर्वर भी मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको डेटाबेस भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सर्वर्स भी मिल जाएंगे, जैसे अपाचे का सर्वर मिल जाएगा, टॉमकैट का सर्वर मिल जाएगा, अलग अलग सर्वर मिलेंगे जो आपके ब्राउजर्स को रन करेंगे, मतलब आपके सर्वर्स को रन करने के काम करेंगे, ठीक है। तो जब आप लोगों को कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है, इंक्लूडिंग PHP, अगर आप लोग PHP यूज कर रहे हो और आप लोगों को कुछ वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वो लोकल होस्ट पे रन करवाने के लिए आपको XAMPP का जरूरत लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अभी इस XAMPP सॉफ्टवेयर का रन करके क्या करूंगा, इसको यूज करके मैं जो अभी आप लोगों को बताया मैंने कि HTML का पेज और CSS का पेज अलग अलग जगह पे रहेगा, और उन दोनों का मैं कम्युनिकेशन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को XAMPP लगने वाला है। तो XAMPP में आपको ये इस तरीके का आपको उसका UI मिलता है। यहाँ से आपको सर्वर को स्टार्ट करना है और यहाँ पे MySQL को स्टार्ट करना है, ये दोनों चीजें आपको रन करना है पहले, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग XAMPP को इंस्टॉल करते हो तो उसकी एक डायरेक्टरी बनती है, मैं उसकी डायरेक्टरी भी आपको दिखाता हूँ। लेट्स से C ड्राइव में, जस्ट अ मिनट, C ड्राइव में एक XAMPP का फोल्डर रहेगा। उस XAMPP फोल्डर के अंदर आपको htdocs ये फोल्डर मिलता है। इस फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर, अभी नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसको नाम देते हैं लेट्स से डिप नाम देता हूँ मैं, डिप्लोमा के लिए डिप, इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिप नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा HTML का पेज बनाऊंगा। तो सब में पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो कोड किया है, यहाँ पे ये जो कोड किया है HTML का, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं CSS का पार्ट हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने CSS का पार्ट हटा दिया। अभी ये मेरा नॉर्मल HTML का प्रोग्राम है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैं इसको फाइल सेव एज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। htdocs के अंदर डिप नाम का फोल्डर है हमारा, डिप, और यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैंने नाम दिया index.html, इस तरीके से मैं उसको नाम देता हूँ index.html, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम मैंने सेव कर लिया। अभी मैं उसको रन करूंगा मेरे प्रोग्राम को, ठीक है। तो रन आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक बार जैसे आप लोग XAMPP के सर्वर को स्टार्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। जैसे आप लोग लोकल होस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सर्वर रन हो जाएगा। ये जो XAMPP का सर्वर है वो रन हो जाता है। अभी आपने
जो नाम दिया है आपके फोल्डर को, तो फोल्डर को नाम क्या दिया आपने, डिप। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा डिप, इस तरीके से लिखूंगा, तो मेरी HTML फाइल रन हो जाएगी सीधे। यहाँ पे मेरी HTML फाइल रन हो गई है। दिख रहा है सभी को? सर सर। यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं क्या आपको? नो सर। नो, No, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, No. एक CSS फाइल बनाऊंगा सीधे। ये मेरा फोल्डर था, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी CSS फाइल बनाऊंगा सीधे। यहाँ पे मैं, ये मेरा HTML फाइल है, अभी मैं यहाँ पे एक CSS फाइल बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने उस फाइल को नाम दे दिया a.css। मैं उसको सेव करता हूँ, सेव एज, उसको नाम दे देता हूँ मैं a.css, ठीक है। मैंने a.css नाम की फाइल बना लिया यहाँ पे, आपको दिख रही है a.css और index.html। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, डेटा लिखूंगा, मतलब मेरा जो भी इफेक्ट्स मुझे चाहिए वो मैं लिखूंगा। तो मैंने इफेक्ट्स क्या दिए थे, मुझे इसका बैकग्राउंड क्या चेंज करना था, ऑरेंज करना था, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इस टैग का नाम क्या था, H1 टैग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, कहाँ पे गया मेरा a.html, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1 टैग का मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, कलर कौन सा सेट करना था मुझे, ऑरेंज। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर कोलन ऑरेंज, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। अभी अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अभी तक इस HTML पेज को मेरे CSS पेज के साथ कनेक्ट नहीं किया है सीधे। ये दोनों अलग अलग पेजेस है, मैंने दोनों को कनेक्ट किया नहीं है अभी तक। इसके लिए मुझे आउटपुट ऑरेंज में नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ सीधे। मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट मिल रहा है क्या, ऑरेंज में नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, HTML पेज के अंदर से, HTML पेज के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको लिंक करूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नोटपैड में आता हूँ, इस CSS फाइल को मैं लिंक करूंगा। तो CSS फाइल को जो आपको लिंक करना है, वो लिंक करने के लिए आप लोगों को जो टैग्स लिखने पड़ते हैं, वो टैग आप लोगों को लिखने पड़ते हैं कहाँ पे, आपको लिखने पड़ते हैं मेटा डेटा के अंदर। तो मेटा डेटा यहाँ पे कहाँ पे होता है, HTML का। तो ये जो पार्ट है ये होता है HTML का मेटा डेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके पेज पे नहीं दिखेगा, या इसके ये टैग के अंदर आप लोग जो भी चीज लिखोगे ये आपको पेज के बॉडी के अंदर नहीं दिखेगा, वो पेज के हेड पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लिंक, लिंक। और आप लोग उसके आगे लिखोगे REL, रिंक REL। यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टाइल शीट, यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टाइल शीट। और उसके बाद HREF, ये टैग ये एट्रीब्यूट यूज करके उस फाइल का आप लोग नाम दे दोगे a.css। तो ये आपके फाइल का नाम है, ठीक है। तो आप स्टाइल शीट का कनेक्शन उसको लगा रहे हो, और कौन सी टाइप की फाइल है वो a.cs। अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। ये क्लोज करने के बाद अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव। नाउ जस्ट चेक वेदर इट विल वर्क और नॉट। सी दिस, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है ऑरेंज? यस सर। तो जैसे ही मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टाइल टैग से उसको कनेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली a.css के अंदर मैंने जो लिख के रखा था उसके सभी के इफेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखने लगे। अभी मैं क्या करता हूँ, a.css जो मेरी CSS फाइल है, उस CSS फाइल में मैं उसको ओपन करता हूँ पहले। सॉरी, यहाँ पे जो a.css फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा टैग था पैराग्राफ टैग, इसको मैं सेंटर में अलाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे मैं देता हूँ सेंटर। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ये मेरा पेज था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सीधे आ गया सेंटर में, आ गया सेंटर में। यस सर। सो दिस इज द वे you normally collect, Yes. this is the way you connect CSS to HTML. I hope you have understood this. Yes or no? Yes sir. Okay, sir. so now we will back to our presentation. So CSS के बारे में आपको समझ में आया? Now आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, कि सब में पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैं समराइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने अभी के सेशंस में क्या क्या देखा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि दो टाइप की वेबसाइट्स होती है, पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट जो कि होती है इंफॉर्मेटिव साइट, दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, उनको बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। उसके बाद दो चीजें डिप्लॉयमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन। तो डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझ में आया आपको? व्हाट एग्जैक्टली इज द वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग इज नथिंग बट द स्पेस विच यू वांट्स टू परचेस। आपको स्पेस परचेस करनी पड़ती है, अगर आपको कोई चीज आपको ऑनलाइन लेके जानी है तो आपको कुछ स्पेस परचेस करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। और उसके बाद डोमेन नेम, मतलब क्या कि आपकी साइट किस नाम से पहचानी जाएगी ऑनलाइन, उसका नाम, उसका बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। और उसके एक्सटेंशन के बारे में देखा। उसके बाद डोमेन नेम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वेबसाइट के कंटेंट्स आप लोग क्या क्या यूज करते हो उसके बारे में देखा। उसके बाद
क्या CMS क्या होता है और कोड के थ्रू आप लोग किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद HTML क्या होता है उसके बारे में देखा। HTML के सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसका हर एक का मीनिंग क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद कंपैरिजंस देखे HTML में और HTML5 के बीच में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। उसके बाद CSS क्या होता है वो देखा। CSS किस तरीके से लिखते हैं वो देखा। उसके बाद CSS पेज के अंदर और पेज के बाहर किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो उसके बारे में देखा। आई होप आज का सेशन आपको सभी को समझ में आया है। यस और नो? Yes, sir. Now do you have any questions? If you have any Yes, questions, sir. yes, if you have any questions you can ask. If you have any question you can ask related Sir. to web. Yes. सर CSS along from client slide scripting method No, पण होतं no, आणि no, C- no. It's a CS म्हणजे- cascading style sheet. हा आणि सर ते क्लायंट स्लाइड आम्हाला 5व्या सेमिस्टरला सब्जेक्ट आहे तर तो हम्म. आणि हे दोन्ही वेगळं आहे का काही? Client side तुम्ही काय डेफिनेशन सांगताय CSS ची? Client नाही side सर scripting. दोन लॉंग फॉर्म आहे ना त्याचे, मग दोन्ही पण एकच आहे का वेगवेगळं आहे? No, दोघांचं मीनिंग सेमच आहे. लक्षात आलं का? ओके सर. Yes, any other student have any question you can please ask. Any student have any question? Okay, so if you want some videos related, yes, Sujan Sheikh. Sujan Sheikh, do you have any question? No, sir. Okay, so if you want to learn some programming contents, this is my YouTube channel. इस चैनल को आप लोग विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड, एज वेल एज आपको पाइथन के रिलेटेड अगर कुछ सीखना है तो यहाँ पे आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिसको इंटरेस्ट है पाइथन के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो ये वीडियो आप लोग देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट विंडो में। और आपके रिलेटेड आपके लिए मैं एक टेस्ट शेड्यूल किया है, जो मैंने अभी तक का एक्सप्लेनेशन आपको दिया, उस एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए आपको एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट के मार्क्स मैं आपको कल या फिर अगले सेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक भी दी है, जो भी आप लोगों को वीडियो आपके रिलेवेंट लगते हैं, आपको सीखना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं टेस्ट की भी लिंक इसी मीटिंग में दे रहा हूँ। सभी लोगों ने वो टेस्ट क्या करना है, अपीयर करना है। ओके, 5 ही मार्क की टेस्ट है, 5 ही क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी आपका वो टेस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यस और नो? और कुछ नॉलेजेबल लगा होगा ये सेशन आज का? यस और नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, thank you all Yes, of you. sir. Now I am ending the meeting here. We will see. sir. Yes, we will definitely meet in the near future. Okay, thank you all of you. Thank you, sir.